Friends, today we will do 8085 pin functions. So let's start. First I will tell you how to do the rattabazi of this. As you have already seen these videos of rattabaz, that how to learn this 8085 pin diagram. So I have learned it like this. So I will tell you how to learn it. Um, X1 and X2 are girlfriend and boyfriend. They ran away from their house because their family was not allowing their marriage. So they reset out. So they have two childs, Sod and Sid, and they got kidnapped. So they got trapped. Okay. So uh, the kidnappers asked them to give them 7.5 crores, which they say that they can't give that much money. So they said 6.5 will be done, but they don't have 6.5, so they said 5.5 is the final requirement of money. Okay. So somehow they paid the money, and then there is a next story in which Inter and Inta are their neighbors. So Inta have got 8 children in a very super fast speed. So she got children 80 naught, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 in super fast speed. Okay. So and Inta also have extramarital relationship with S naught. Okay. So she also have children with S naught, which Inter don't know that about Inta. So A to A15 are children of Inta from S naught, and then Inta calls S naught Ale Ale. um, matlab, like nickname. Okay. So Inta calls S naught Ale Ale. S not writes letter to Inta, and Inta reads his letter. Okay. Now since Inta got married, S not become mature, and S not turned to S1. Okay. Then Inter comes to know about that they had relationship before his marriage. So he told S1 that he will put him to the jail. He said मैं तो अंदर बाहर कर दूंगा, इनपुट आउटपुट कर दूंगा. ठीक है. So इंटर बोलता है कि मैं तुझे अंदर बाहर कर दूंगा, मतलब इनपुट आउटपुट कर दूंगा. ठीक है. सो देन एसन सेज ओके आई एम रेडी, डू वट एवर यू वॉन्ट. सो इंटर उसे रीसेटिंग कर देता है, मतलब उसे जेल भेज देता है. ठीक है. जेल में डालता है, मतलब रीसेटिंग कर देता है. तो एसन जेल चला जाता है. फिर 37 साल बाद, मतलब 37 क्लॉक आउट, जब S1 जेल से बाहर आता है तो वो हल्दा हथियार होल्ड कर लेता है. एक हथियार होता है हल्दा, उसे होल्ड कर लेता है और उसको गोली मार देता है. तो इंटा सीसी करके रोने लग जाती है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो so that was the trick for pin functions. Now let's start with the function. Now we will explain each and every function. How, what is power supply signals. So number one is power supply signals, that is VCC and VSS. VCC is to be connected to plus 5 volt power supply. Plus 5 volt power supply. And VSS is ground reference. Second, clock signals. So X1, X2. X1 and X2 both are clock signals, as well as clock out is also a clock signal.
x1 and x2 are clock input signals and clock out is an output signal. This is an input signal, this is an output signal. And this one is connected with crystal LC और RC नेटवर्क. इसमें क्रिस्टल से कनेक्टेड होते हैं. x1 and x2 आर बोथ क्रिस्टल कनेक्टेड और LC और RC नेटवर्क होता है इसमें. और इसमें क्या होता है, द क्रिस्टल LC एंड RC इज कनेक्टेड बिटवीन दीज टू पेन्स. मतलब वही बात होगी. ठीक है. अब द internal operating frequency is available on clock out pin. ठीक है. Its frequency is half of the oscillator frequency. इसकी फ्रीक्वेंसी क्लॉक आउट की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी. जिसकी पिन होती है कैन बी यूज बाय द पेरिफेरल्स. पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उनसे ही यूज़ हो सकती है. ठीक है. एज ए सिस्टम पेरिफेरल as a system clock input. पेरिफेरल डिवाइसेस में भी ये सिस्टम क्लॉक इनपुट की तरह यूज़ हो सकती है. Hence there will be synchronization between the different peripherals and the microprocessor. इसकी वजह से क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर और जो डिफरेंट पेरिफेरल्स होते हैं उनके बीच में. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस रीसेट सिग्नल्स. रीसेट सिग्नल क्या होते हैं? पता चली गया होगा. रीसेट इन एंड रीसेट आउट, ये दोनों क्या होते हैं? रीसेट सिग्नल्स. रीसेट इन में क्या होता है? ये एक्टिव लो सिग्नल होता है और ये होता है एक्टिव हाई. ठीक है. अब अगर रीसेट इन में ज़ीरो होगा, इनपुट अगर ज़ीरो होगा, इनपुट हम अगर इसमें ज़ीरो दे रहे हैं तो ये क्या कर देगा? क्लियर्स कर देता है प्रोग्राम को. काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 0 0. ठीक है. और ये वाला सिग्नल हम यूज़ करते हैं सिस्टम रीसेट के लिए. डॉट हम यूज़ करते हैं सिस्टम रीसेट के लिए. चल. फोर्थ है हमारा इंटरप्ट सिग्नल्स. अब इनके बारे में लर्न करना बहुत आसान है. जैसे कि हम ये देख लेते हैं, वेक्टर है, नॉन वेक्टर है. ठीक. RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये इतने भी है. क्या है ये? वेक्टर्ड. ठीक है. ट्रैप, नॉन मास्केबल. ठीक है. इंटर नॉन वेक्टर्ड है. ठीक है. और बाकी के जितने भी हैं ये मास्केबल भी हैं और वेक्टर भी. ऐसे ट्रैप हटा देते हैं. ठीक है. नॉन, देखो, ट्रैप वेक्टर्ड है बट नॉन मास्केबल है. RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5
ये वेक्टर भी हैं और मास्केबल भी हैं। और इंटर जो होता है हमारा नॉन वेक्टर होता है और हमारा मास्केबल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आप इनमें लिख ही सकते हो। ठीक है, इंटरप्ट सिग्नल में ये सारे के सारे हमारे एक्टिव हाई हैं। अब एक्टिव हाई कैसे पता चलता है? जिसके ऊपर वो नहीं होता, बार नहीं होता, वो सब एक्टिव हाई होते हैं। और इसमें हमारा एक इंटा भी आता है इंटरप्ट सिग्नल में, और इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होती है और ये एक्टिव लो है क्योंकि इसके ऊपर हमारा बार है। एक्टिव लो। अब आ गए हम एड्रेस बस एंड डाटा बस। सो व्हाट इज एड्रेस बस? In the pin diagram, A8 to A15 is address bus, okay, and data bus और multiplex bus भी कहते हैं हम इसे, are from AD0 to AD7। ये आउटपुट के लिए होती हैं। ठीक है, आउटपुट ट्राई स्टेट सिग्नल्स। तो स्टार्ट कर देता है ना। दीज आर मल्टीप्लेक्स। ओके, दे आर यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। These are also tri-state signal। इसके पास टू सेट होते हैं, हैविंग टू सेट, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, मल्टीप्लेक्स्ड with the help of ALE signal। Status and control signals। क्या होते हैं? एड्रेस, लैच, इनेबल। ALE सेकेंड स्टेटस सिग्नल्स, S1 and S0। थर्ड इनपुट आउटपुट मेमोरी। IOM। फोर्थ रीड, फिफ्थ राइट, सिक्स्थ रेडी। ये क्या होता है? आउटपुट सिग्नल। ये इंफॉर्मेशन गिव करता है AD0 से AD7 सिग्नल्स तक की। ठीक है, यूज टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ AD0 टू AD7 कंटेंट्स। हमारा स्टेटस सिग्नल S1 एंड S0, ये हमारे दोनों आउटपुट होते हैं, यूज टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारा आउटपुट सिग्नल ही होता है, जैसे वो होता है ये भी आउटपुट सिग्नल है। और ये भी क्या करता है? और इंफॉर्मेशन देता है ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं। ये AD0 से AD7 की इंफॉर्मेशन देता है। ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनकी
इंफॉर्मेशन देता है ये। और इनपुट आउटपुट मेमोरी जो होती है हमारी, आउटपुट स्टेटस सिग्नल होता है भी एक। ये किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए होता है? इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड विथ मेमोरी और आईओ डिवाइस। मेमोरी और आईओ डिवाइस में जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। रीड तो पता ही है, रीड करने के लिए होता है, और राइट के लिए होता है। रेडी हमारा एक एक्टिव हाई सिग्नल है, एक्टिव हाई इनपुट कंट्रोल सिग्नल। राइट और रीड हमारे दोनों एक्टिव लो सिग्नल हैं, तो इसकी मैंने बताया था जिसके ऊपर बार होता है वो एक्टिव लो होते हैं, ये भी एक्टिव लो है। So these are for data bus, कंट्रोल बस, दोनों डाटा बस में पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा हमें ना। सेवन्थ है हमारा डीएमए रिक्वेस्ट। डीएमए रिक्वेस्ट सिग्नल मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये होता है हमारे होल्ड और हल्दा एंड हल्दा, इसमें होते हैं होल्ड और हल्दा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। ये दोनों एक्टिव हाई होते हैं, होल्ड और हल्दा दोनों, ठीक है, ये दोनों एक्टिव हाई होते हैं। और इनपुट सिग्नल होते हैं दोनों के दोनों एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल्स। यूज़ होते हैं बाय अदर कंट्रोलर, बाय द अदर कंट्रोलर टू रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि कोई और कंट्रोलर है और वो माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा है, उससे कनेक्ट होना चाह रहा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के थ्रू, तो ये होल्ड और हल्डा उसमें यूज़ होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है जी, हम आगे पढ़ेंगे डीएमए को आगे वाली 4th यूनिट में बहुत ब्रीफ में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएमए। नाउ सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स, दिस इज़ द लास्ट वन। ये दो होते हैं हमारे सेड SID, जो कि हमने सेट पढ़ा था, सीरियल इनपुट डाटा। सेकंड होता है हमारा सोल, सीरियल आउटपुट डाटा। और ये दोनों भी एक्टिव हाई सिग्नल्स होते हैं। इनपुट पोर्ट पिन होता है, ये आउटपुट पोर्ट पिन होता है, ठीक है, इनपुट पोर्ट पिन और ये हमारा आउटपुट पोर्ट पिन। ओके, सो दिस इज़ इनफ आई गेस। सो थैंक यू, प्लीज़ like my channel, subscribe it and share it with your friends. Thank you, bye.